Good morning, everyone. My name is Meghna. I'm an assistant professor at Lloyd Business School. So, today we are going to discuss the topic behavioral dynamics. As you can see, there is two terms in this behavior plus dynamics. So, if we talk about behavior हम किसका देखते हैं? Human का. Whether it's individual behavior or it's group behavior. So, first we will clear the concept about human behavior. Human behavior is anything we do which can be observed in some way. देखिए अब कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है तो सामने वाला उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से चाहे वो उसको देख करके ऑब्जर्व कर रहा है या उसको सुन के ऑब्जर्व कर रहा है तो चाहे वो उसको पॉजिटिवली रैंकिंग कर रहा है उस ऑब्जर्वेशन से या उसको नेगेटिव रैंकिंग कर रहा है तो दैट कम्स अंडर ह्यूमन बिहेवियर मतलब आपका जिस तरीके का भी आपका बिहेवियर आप जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं उस तरीके से आप बिहेव करते चले जाते हैं और सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है तो दैट इज ह्यूमन बिहेवियर एनीथिंग यू डू in that particular environment and which can be observed in some way by others is called human behavior. So your human behavior includes many things like your physical actions, your verbal behavior, your facial expressions or your body gestures. So these behaviors can be observed as we can see or hear them. अब देखिए आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं तो आप क्या है आपका बिहेवियर टोटली डिपेंड करता है आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका बिहेवियर में क्या चीजें होंगी आपका फिजिकल एक्शन से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है बाय योर वर्बल कम्युनिकेशन और योर वर्बल बिहेवियर और वेदर बाय योर फेशियल एक्सप्रेशन और योर बॉडी जेस्चर्स तो आपको किसी भी तरीके से देख रहा है या सुन रहा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और उस ऑब्जर्वेशन से आपके लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है तो दैट इज हिज ह्यूमन बिहेवियर. Now come over the second term that is dynamics. Dynamics mean changes. So dynamics of human behavior are the factors that stimulate a change in human behavior. As we all know, human behavior is a dynamic phenomena and which change time to time by its new experiences or whether by learning, whether by social cultural changes, biological changes or by psychological changes etc. देखो इंसान जो है वो टाइम टू टाइम अपने अंदर चेंजेस लाता रहता है अगर वो चेंजेस नहीं लाएगा तो क्या होगा उसमें क्या है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मतलब लर्न नहीं कर पा रहा है तो इंसान का जो बिहेवियर है उसमें डायनामिक्स मतलब उसमें चेंजेस आना बहुत ही जरूरी होता है उसके बिहेवियर के अंदर तो वो किस किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लाता है वेदर बाय गेटिंग सम न्यू एक्सपीरियंसेस वेदर बाय लर्निंग समथिंग न्यू or by some social cultural changes or by some biological or social changes. So there is three major categories of human behavioral dynamics. That is first is biological or sociological dynamics. Second is socio-cultural dynamics. And third is psychological dynamics. As we already discussed these three categories in brief as earlier, so we will come over the second slide that is what is behavioral dynamics. In first slide clear the concept of human behavior plus dynamics. Now we will discuss what is behavioral dynamics. So there is a dynamic relationship between behavior and environment. The behavioral characteristics of an individual or a group do not operate alone because these are conditioned and affected by their environment. If we talk about the behavioral dynamics ना तो वो कभी भी there is a relationship, so there is a positive relationship between the individual behavior and इंडिविजुअल एनवायरमेंट कि अगर हम बात करते हैं कि सर बिहेवियर की बात करें तो नो वी कैन नॉट स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर विदाउट इट्स इंडिविजुअल एनवायरमेंट क्यों क्योंकि आपका कभी भी किसी भी इंसान का इंडिविजुअल बिहेवियर अकेला स्टडी नहीं हो सकता अकेला ऑपरेट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है वो टोटली इफेक्ट किस पे इफेक्ट होता है उसके एनवायरमेंट में कि वो किस तरीके के एनवायरमेंट में रह रहा है फॉर एग्जाम्पल
अब आप देखिए कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके घर में अलग तरीके का बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि आपके घर का एनवायरनमेंट अलग है। आप जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उनके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, वो वैसा ही आप अपने टीचर्स के साथ या वैसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते हैं। तो आपका बिहेवियर जो है आपके घर के एनवायरनमेंट के के हिसाब से अलग होता है। व्हेन यू मीट टू योर फ्रेंड्स, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फ्रेंड जोन में आ गए हो आप, तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया। फिर आप अपनी क्लास में आए हो तो आपके टीचर के सामने आपका एक फॉर्मल बिहेवियर में आप रहते हो, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट वहां क्रिएट हो जाता है। तो आपका बिहेवियर टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन विच यू आर लिविंग। सो अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन, to gain a better understanding of behavioral dynamics, one has to consider both the individual and the environment. कभी भी किसी के भी behavioral changes का, behavioral dynamics का अगर आपको पता लगाना है, तो क्या आपको दोनों चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। तभी आप उसके बिहेवियर का पूरे तरीके से पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी एग्जाम्पल दिया है, कि इंसान का जो बिहेवियर है वो टोटली डिपेंड करता है अबाउट ऑन हिज environment in which he or she living. Now come over the point, interpersonal behavior. What is interpersonal behavior? So interpersonal behavior is the behavior and actions that are present in human relationship, the way in which people communicate, and all that this entails is considered interpersonal behavior. अब देखिए इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है। किसी भी इंसान का बिहेवियर उसके एक्शंस को, या जो उसके एक्शंस होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, वो क्या टोटली किसको प्रेजेंट करता है कि इन उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप किस तरीके का है, उनका कम्युनिकेशन किस तरीके का है, राइट। उनको उसके अंदर वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो ऑल दीज इंक्लूड इन interpersonal behavior. So interpersonal behavior includes verbal and non-verbal communication both. If we talk about non-verbal communication, it includes your body language, your facial expression. देखिए समटाइम्स आप क्या है, इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफी कुछ आपके फ्रेंड को समझा देता है। या सम टाइम अगर हम नेगेटिव टर्म्स में बात करें तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी काफी चीजें आपके बिना बोले आप सामने वाले को बता देते हैं। नाउ if we talk about verbal communication or verbal interpersonal behavior, it includes joking, relating to one another by art of storytelling or taking or following the orders. So interpersonal skills are highly desirable in many stages of your life. Whether like if you are not good in interpersonal skills, then you can be lag behind in your career also. Why? Because your career that rely on the personal relationship, such as it's an example like healthcare industry or sales industry. In this industry, interpersonal skills, although interpersonal skills आपको हर आपको हर इंडस्ट्री के लिए, हर मतलब करियर में हर स्टेज के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं ना। बट दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन बाय मी that especially career that rely on personal relationship such as healthcare industry or sales. Now our third slide, that is communication. So communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. Communication क्या है कि किसी भी आपके मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना, या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, या एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी इंफॉर्मेशन का जाना, दैट इज communication. So every communication involves at least one message, one sender and one receiver. अब देखिए आप कोई भी किसी से भी आप बात कर रहे होते हैं, तो आपके पास बात करने के लिए कोई वजह होती है या कुछ भी, आपके पास कोई मैसेज तो होता है ना, कोई बात तो होती है ना। अब वो जो बात है वो क्या है, आपका एक मैसेज है। अब उस मैसेज को क्या है, आप भेजने वाले हैं, यू आर द सेंडर। और आपकी उस बात को सुनने के लिए कोई रिसीवर भी तो होना चाहिए ना। तो एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट एक बात, एक सेंडर और एक रिसीवर।
वन मैसेज, वन सेंडर एंड वन रिसीवर, ये जरूर होना चाहिए। अब हमें सिंपल क्या लगता है कि अरे कम्युनिकेशन तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट इन एक्चुअल कम्युनिकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। व्हाई? समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो क्या है, गलत तरीके से हो जाता है। जैसे कि आपने, जैसे अगर हम कम्युनिकेशन चैनल को बढ़ा देते हैं, लाइक मैं किसी को कुछ बात बोल रही हूँ और वो बात मैंने उसको डायरेक्टली ना बोल करके किसी उसके फ्रेंड को बोली है, तो उसका फ्रेंड मेरी बात सुनेगा। अब वो अपने तरीके से उस बात को, मतलब मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, रिसीवर कौन है, आपका फ्रेंड है। तो आपके फ्रेंड को मैंने बात बोली, अब उसने अपने तरीके से वो बात को समझा, उस मैसेज को समझा और इंटरप्रेट किया। अब उसने अपने तरीके की समझ से आपको वो बात आगे कन्वे की। तो क्या है, चैनल जो है हमारा वो बढ़ गया। या फिर हम कुछ दो तीन लोगों को और इंक्लूड कर लेते हैं कि मैंने किसी को कोई बात की, उन्होंने आगे किसी को बात की, उन्होंने फिर आगे किसी को बात की। या फिर हम टॉप लेवल से, मान लीजिए टॉप लेवल को लोअर लेवल तक मैसेज देना है, तो टॉप लेवल में बातें हो रही है, फिर वो मिडिल लेवल तक आ रही है, मिडिल लेवल में वो किसी ने किस तरीके से समझी, देन वो लोअर लेवल तक आ रही है। तो क्या है, चैनल जो है वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया है। चैनल क्या है, आपका जो मैसेज है वो किसी ने क्या समझा और सामने वाले ने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करके सामने वाले को बताया। तो क्या है, आपका जो ट्रांसमिशन है ऑफ मैसेज वो क्या है, सारा चेंज होता चला जाता है। सो द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रेसिपिएंट कैन बी इफेक्टेड बाय अ ह्यूज रेंज ऑफ थिंग्स। So this includes your emotions, your cultural situations, your medium used to communicate, or even our location. अब देखिए, मुझे मान लीजिए मेरे इमोशंस किसी भी तरीके के थे जो मैंने सामने वाले को अपना मैसेज दिया, अब उसका इमोशंस पता नहीं किस तरीके के हैं, तो वो थर्ड पार्टी को किसी और तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो वो क्या है, इमोशंस का खेल हो गया ना। तो इमोशन जब हमारे सामने वाले को कम्युनिकेशन अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो हमारी इमोशंस को डायरेक्टली समझ पाता है, लेकिन जहां एक चैनल क्रिएट हो जाता है तो वो क्या, वहां क्या है, इमोशंस भी चेंज होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट होता चला जाता है, और जिससे काफी क्या होता है, आपके रेंज के अंदर चेंजेस होते चले जाते हैं। फिर अगर हम कहें कल्चरल सिचुएशंस, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी आते हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर। आपका मीडियम, आप किस मीडियम के, आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, टेलीविजन से कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया से कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, आप किस मीडियम के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा असर डालता है। फिर है आपकी लोकेशन किस तरीके की है, अब आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, टोटली डिपेंड्स कि आप किस लोकेशन पर हैं, किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। So there are three categories of communication. One is verbal communication. It includes your face-to-face communication, telephonic communication, radio or television and other media. Other media जैसे आजकल आप व्हाट्सएप से बातें कर लेते हैं, व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेंजर कॉल आप करते हैं, आप जूम मीटिंग करते हैं, मीट से करते हैं बातें, स्काइप से करते हैं, तो बहुत सारे अदर मीडियाज भी आप यूज करते हैं। Now, non-verbal communication. So, non-verbal communication includes covering your body language, it includes your gestures, how we dress or act, where we stand, and even our scent. So, there are many subtle ways that we communicate with others. So, for example, the tone of voice can give clues to mood or emotional state. Whistle hand signals and gestures can add to a spoken message. देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपके जेस्चर्स किस तरीके के हैं, आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हो, कैसे आप खड़े हो, मेनी थिंग्स। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिना बोले कई बार आपकी बहुत सारी चीजें बता देता है। समटाइम्स देखिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मान लीजिए आप गुस्से में हैं, आपके जेस्चर्स जो हैं वो आप
बता देते हैं कि सामने वाला गुस्से में है, उसका मूड किस तरीके का है, या आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, वो समटाइम्स आपको बता देती है कि ये मतलब ही इज सैड, हैप्पी, किस तरीके का मूड है, इमोशनल है। तो बहुत सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही हमें पता चल जाती हैं। नाउ थर्ड इज रिटन कम्युनिकेशन, which includes letters, email, social media, books, magazine, the internet, and the other media. Until recent times, a relatively small numbers of writers and publishers were very powerful when it came to communicating the written words. So today we can all write and publish our ideas online, which has led to an explosion of information and communication possibilities. देखिए, रिटर्न कम्युनिकेशन एज वी ऑल नो, रिटर्न में क्या क्या आता है? लेटर्स आप लिखते हैं, ईमेल्स आप डालते हैं, सोशल मीडिया है आपका, जहाँ आप वेर यू आर टोटली फ्री कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी बुक्स हैं, आपकी मैगजीन्स जो आप पढ़ रहे हैं, या इंटरनेट है, या कोई भी अदर मीडिया है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, जिनका बहुत ही अच्छा कमांड है, जो उन किस पे कमांड है, अपने वर्ड्स पे कमांड है, जो कि जो वो बोलना चाहते हैं सामने वाले को वो क्लियरली समझ में आता है, उनके वर्ड्स वो क्या कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है उसके अंदर, किस फीलिंग के साथ वो इस चीज को लिख रहे हैं, एवरीथिंग। तो आज के टाइम में क्या है, रिटन कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे? आपको आप अपने आइडियाज को फ्रीली ऑनलाइन आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ा सकते हो, अपने चैनल्स को आप जितना मन चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या मतलब? देखना, देख करके किसी पिक्चर को, किसी चार्ट को, किसी ग्राफ को, किसी लोगो को, किसी मतलब एनीथिंग, जो भी चीज आप देख करके उसकी क्लियर पिक्चर समझ रहे हैं कि ये चीज क्या कहना चाह रही है। अब मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, कोई भी चार्ट है, उसको बना करके ही सामने वाला अपनी सारी फीलिंग्स को, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है अपने ऑडियंस को, वो उनको समझा देता है। तो दैट इज विजुअलाइजेशन। नाउ हम this is transactional analysis. So, transactional analysis refers to the psychoanalytical process wherein the interpersonal behavior are studied. In other words, we can say it's a social psychological model that talks about the personal growth and personal changes, that is, identifying the ego state of each individual to understand their behavior and altering them to solve the emotional problems. देखिए, जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है वो पूरे तरीके से किससे, साइको एनालिटिकल प्रोसेस से रिलेट करती है। और ये क्या करती है, सामने वाले के बिहेवियर को, इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसा है उनका आपस में, उसको स्टडी करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ये किसी इंसान की पर्सनल ग्रोथ को और उसमें जो पर्सनल चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसको स्टडी करता है। और जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस मॉडल है वो किसने दिया था? इट वाज गिवन और ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डॉक्टर एरिक बर्ने। उनके ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर एरिक बर्ने कौन थे? ही वाज एन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ड्यूरिंग हिज ऑब्जर्वेशन व्हाट ही फाउंड दैट हिज पेशेंट बिहेव्ड इन अ वे as if several different people were inside them, and this forced him to study the personality and the dynamics of self and its relationship with others, which help in determining the kinds of behavior that an individual shows in different real situations. अब देखिए, डॉक्टर एरिक बर्ने ने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जो उनके पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग मतलब वो डिफरेंटली, सेवरल डिफरेंट तरीके से वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, कि उनके अंदर बहुत सारे, एक ही इंसान के अंदर वो बहुत सारी पर्सनालिटीज को देखते हैं, और उन पर्सनालिटी के डायनामिक्स को देखते हैं कि उनका खुद से और दूसरे लोगों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो उन्होंने क्या किया, उस अपने जो उनके पेशेंट्स थे उनकी पर्सनालिटी को उन्होंने मतलब क्या करना, उस पे वर्क करना स्टार्ट किया, और उनसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी का क्या बिहेवियर है और वो किस रियल सिचुएशन में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये उन्होंने स्टडी किया। दैट इज ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। नाउ डेज दिस स्टडी हैज बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच। व्हाई?
because it is used in several fields, like in psychotherapy it is using in counseling, education sector, organizational development, and in many other industries and in many other fields it is using. So the transactional analysis give birth to several models that helps in explaining the relationship formed between the individual as a result of their interactions. So it mainly involves transactional analysis includes Johari window, ego state, life script, life position, and transactions. So according to your syllabus, you have to study only about Johari window. So our Johari window, it's a part of transactional analysis. As we already discussed, that's transactional analysis, which was developed by Dr. Eric Berne. तो इफ यू टॉक अबाउट जोहरी विंडो में क्या था? देखिए, हम अगर नॉर्मल टर्म्स में इसके बारे में बात करें, तो कई बार क्या होता है, हमारे कलीग का या हमारे फ्रेंड का एनवायरनमेंट जो बिहेवियर होता है, वो कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए डिस्टर्बिंग बिहेवियर हो जाता है, जो कि समटाइम्स क्या होता है, लोगों को डिस्टर्ब करता रहता है, वहाँ के लोगों को। तो इट्स मच बेटर कि हमें उसको फीडबैक दे देनी चाहिए उसी टाइम, सो दैट ही और शी कैन चेंज देयर बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर में चेंज ला करके उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्बिंग होने से, मतलब उस एनवायरनमेंट को कम डिस्टर्ब करे। सो इट इंक्लूड्स, so this comes under Johari window. When someone exhibit behavior that is perceived to be to be disturbing by their environment, so it is good to give them feedback on it. For many, it can be very difficult to confront others on their behavior. So people are not always aware from their own behavior, or perhaps they are aware of their behavior, but will not easily admit, they will not easily admit it that their behavior is disturbing for the environment. So feedback is a very good way to confront someone on their disturbing behavior. So Johari window model or Johari window can help with this. It provides insight into the behavior of yourself and others. See, देखिए, जैसे मैं बता भी रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, लोगों का बिहेवियर उनके एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, डिस्टर्बिंग होने लगता है। तो इट्स वेरी गुड कि आप उनको फीडबैक उसी टाइम दे दें, एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, और एज अ लीडर। तो आप उनको क्या है, फीडबैक दे सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को पता होता है दैट आई एम डिस्टर्बिंग द बिहेवियर, लेकिन क्या है, उनके लिए वो एडमिट करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी तरीके से, कि मैं सीनियर हूँ, या फिर नहीं नहीं, मैं तो ऐसा, दूसरों को तो ऐसा नहीं लग रहा, सामने वाला तो हंस रहा है मेरी बात से, या सामने वाला तो इरिटेट नहीं हो रहा है मेरी बात से। तो क्या वो क्या करता है, अपने उस डिस्टर्बिंग बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता है। सो इट्स वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू जोहरी विंडो, इट्स वेरी गुड दैट यू हैव टू गिव द फीडबैक टू हिम और हर, सो दैट दे कैन कन्फ्रंट कि हाँ, उनका बिहेवियर उस तरीके से है और वो अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सके। If we talk about the history of Johari window, so this model was created in 1955 by Joseph Lupton and Harry Ingham. So the name is derived from the first name of the creators. See, Joe and her. जोहरी, हैरी, जोहरी, ठीक है, तो जोहरी विंडो. So the Johari window model can help people to better understand their communication with others. So it helps, क्या हेल्प करता है कि एक इंसान के या किसी भी आपस में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल है, उनका कम्युनिकेशन आपस में समझने में ये हेल्प करता है. Now, Johari window has four quadrants. One is open, second is blind, third is hidden, and fourth is unknown. देखिए, इन four quadrants की अपनी अपनी qualities हैं. That first is things in open quadrant, things that are known by you and also seen and acknowledged by others. तो ओपन क्वाड्रेंट में क्या आता है जौहरी विंडो में, कि वो चीजें जो आपको खुद को भी पता है अपने बारे में, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपको खुद को भी पता है और सामने वाले को भी आपकी सभी चीजें पता है, तो दैट कम्स अंडर ओपन क्वाड्रेंट. इफ वी टॉक अबाउट ब्लाइंड क्वाड्रेंट,
So things that are unknown by you but seen and acknowledged by others. कुछ ऐसी चीजें, आपका ऐसा बिहेवियर, आपका ऐसा नेचर, जो आप खुद तो अपने उस बिहेवियर के बारे में आपको खुद से आप अननोन है, लेकिन आपके ग्रुप मेंबर्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स जो भी हैं, वो उस बारे में आपके नेचर या बिहेवियर के बारे में जानते हैं. तो दैट कम्स अंडर ब्लाइंड क्वाड्रेंट. Third is hidden quadrant. Hidden quadrant, things that are known by you but unknown by others. ऐसा आपका नेचर बिहेवियर जो आपको या ऐसी कोई भी आपकी स्किल्स जिसके बारे में आपको तो पता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स को नहीं पता है. इट कम्स अंडर हिडन क्वाड्रेंट. नाउ फोर्थ इज अननोन क्वाड्रेंट. So things that are unknown by you and also unknown by others, जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता और जिसके बारे में आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या आपके कलीग्स को भी नहीं पता. तो दैट कम्स अंडर अननोन क्वाड्रेंट्स. अभी हम लोग उनको ब्रीफली स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज ओपन स्पेस. First, open space, which known to you and known to others. So this open space is about the behavior that is known by you and also seen and acknowledged by others. So you can communicate about this. Still, it sometimes happens that there is a behavior that is disturbing to the environment and where someone is aware that it is, and it is not always easy to acknowledge when someone is confronted about this by someone else. So patience and caution are important when discussing this behavior with someone. अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका इस तरीके का बिहेवियर होता है जो आपको भी पता होता है, सामने वाले को भी पता होता है. जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जो बहुत ही फन लविंग है, जैसे हर टाइम जोक्स क्रैक करना, हर बात पर जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता है. अब मान लीजिए आपको पता है कि हाँ, इसका इस तरीके का बिहेवियर है, वो किसी भी तरीके का मूड हो, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो, वो उसको जोक क्रैक करना ही होता है. तो सामने वाले को भी क्या है, उसके उस नेचर का पता होता है, जिससे क्या होता है, वो उस एनवायरनमेंट को समटाइम्स क्या होता है, पेशेंस और क्वेश्चंस की वजह से उनको वो एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो आपको खुद को भी पता है दैट यस, आई एम अ फन लविंग गाय एंड आई कैन क्रैक द जोक्स एट एनी, like anywhere I can crack the jokes at any situations. So आपके फ्रेंड्स को भी सेम आपकी यही बात पता है. तो समटाइम्स क्या होगा, आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट नहीं होता है उसकी वजह से. सेकेंड इज ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, अननोन टू योरसेल्फ, आपको नहीं पता है बट नोन टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, like first we will study this. The blind spot can be very difficult to manage and can cause others to talk about you. So this is because they can see something that you do not. The frequent use of same words or continuous pulling of the nose are example of this. So the blind spot can also occur in the working environment. Someone can be unaware of the fact that he works slower than his colleagues, so others are aware of this, and however, which can cause certain irritations. If feedback is not given properly to another, he will stay stuck on in his old behavior and is likely to fall outside the group. देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि आपको खुद को नहीं पता होता है कि आप मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स, जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं, उनसे स्लो हैं उस काम को करने में. और दूसरे आपके आपको नहीं पता दैट यू आर स्लो टू डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो आपके बारे में पीछे से उसके बारे में बात करते हैं. तो उनके लिए क्या है, वो इरिटेशन होने लगती है उनको एक टाइम के बाद, कि और आपको उस बारे में पता ही नहीं होता है. तो क्या है, आप अपने उसी बिहेवियर के साथ स्टक रहते हैं. क्यों? क्योंकि आपको किसी ने फीडबैक ही नहीं दिया है. तो इट्स मच बेटर एट दिस पॉइंट कि आपको आपके कलीग्स को बताना बहुत ही जरूरी है, आपको फीडबैक देनी प्रॉपर तरीके से बहुत ही जरूरी है, सो दैट यू विल नॉट stuck in your old behavior, or you will change your nature and do not fall outside the group. So it comes under blind spot. Now come the hidden area.
इन हिडन एरिया, नोन टू योर सेल्फ बट अननोन टू अदर्स। इसमें क्या होता है, आपको तो पता होता है अपनी किसी पर्टिकुलर किसी स्किल के बारे में, किसी ऐसी कोई भी ऐसी चीज कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा बिहेवियर जिसके बारे में आपको अपने बारे में पता है, बट योर फ्रेंड्स और योर कलीग्स आर नॉट अवेयर अबाउट योर skills. In hidden area, people can keep certain information to themselves and not share it with others. So for example, the office clerk can keep hidden from his colleagues that in his free time he is a jazz guitarist. So the hidden area can also be unknown to a limited number of the people, and the same office clerk may have a good colleague with whom he does share his hobby, so making it a subject for communication. In that case, this hidden area slowly shifted to open space. अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई आपके ऑफिस में कोई क्लर्क है जो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, अच्छा गिटार प्ले कर लेता है, लेकिन उसने अपनी इस एक्टिविटी के बारे में, अपने इस हिडन टैलेंट के बारे में किसी को भी शेयर नहीं किया हुआ है, और समहाउ वो अपने किसी अच्छे कलीग के साथ उस बात को शेयर करता है, अपनी उस हॉबी के बारे में बताता है, और वो जो हॉबी है उसकी वो एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट बन जाती है आपके ग्रुप के अंदर कि हाँ अच्छा, ये तो अच्छा गिटार प्ले प्ले कर लेता है। तो क्या है, आपकी वो हिडन जो एरिया है वो क्या है, धीरे धीरे ओपन स्पेस में आने लगता है। ओपन स्पेस क्या, जिसमें आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है। तो आपका जो हिडन एरिया है वो स्लोली शिफ्ट हो जाता है टू द ओपन स्पेस। Now come to the fourth point, that is unknown area. In this you are unknown to yourself and unknown to others, कि आपको खुद को भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता। वो कैसे, कि जब कोई कम्युनिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, अननोन एरिया क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, अननोन एरिया क्रिएट होगा जो जो बोथ द पार्टीज हैं, आप भी और सामने वाले आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेंबर्स, एनीवन, वो भी क्या है, अनअवेयर होंगे इस बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब कम्युनिकेशन, वहां कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं, जिससे क्या है, आपको खुद भी नहीं पता आपकी कोई एक्टिविटी है। मान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे स्विमर हैं, और कोई कहीं कुछ इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आपने कभी उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं, लेकिन आप अच्छे से स्विम करना जानते हैं, लेकिन कभी आपने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप बहुत ही अच्छा स्विम भी कर सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। तो जब आपको खुद को ही नहीं पता, आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज के बारे में, तो क्या होगा, आपकी उस एक्टिविटी के बारे में, just because you never had communication with your colleagues or with your friends about this, तो क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं वो भी अननोन होंगे आपकी उस एक्टिविटी से। तो दैट कम्स अंडर अननोन एरिया। नाउ come over the topic leadership. Leadership, what is leadership? Leadership is the process of channelizing the energy of an individual or a group towards the realization of a specific goal, objective, and vision. तो लीडरशिप क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक एनर्जी को चैनलाइज करती है। किसमें चैनलाइज करती है, इन एनी इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिससे क्या है, वो किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ क्या कर सके, गोल की तरफ जा सके, या पर्टिकुलर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनका विजन है, उसको अचीव कर सके। तो दैट इज लीडरशिप। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ब्रीफ अबाउट द लीडरशिप in earlier chapter, so that is why I just mentioned here one line, that what is leadership। अब देखिए, जो भी कोई एक अच्छा लीडर है, वो अगर चैनलाइज नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, किसी भी मतलब उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसका कमांड अच्छा नहीं है, या फिर वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है, या उनको सॉल्व नहीं कर रहा है, तो क्या है, वो एक अच्छा लीडर नहीं है। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या करता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है बाय चैनलाइजिंग, उनको हर चीज बता करके कि आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, आपका विजन किस तरीके का है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को वो तभी अचीव कर सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर लीडरशिप। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। So this time we will discuss the leadership theories.
First leadership theory was given by great men theory. So this theory comes in 1840. So the great man theory evolved around the mid 19th century. Even though no one was able to identify with any specific certainty that which human characteristics or the combination of were responsible for identifying a great leader. So everyone recognized that, just as the name suggests, that only a man could have the characteristics of a great leader. So the great man leader assumes that the trait of leadership are intrinsic. So that simply means that great leaders are born, they are not made. So this theory sees great leaders are as those who are destined by birth to become a leader. Furthermore, the belief was that great leaders will rise when confronted with the appropriate situation. The theory was popularized by Thomas Carlyle, a writer and a teacher. Just like him, the great man theory was inspired by the study of influential heroes. So, ग्रेट मैन थ्योरी में क्या हुआ था? ये थ्योरी कब आई थी? 18th century, in the mid of 19th century. 1840 में आई थी ये। तो इस थ्योरी में क्या किया, कहीं पे भी ये क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया साइंटिफिकली वे से कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है ह्यूमन क्वालिटीज का या कैरेक्टरिस्टिक्स का जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ग्रेट लीडर्स कौन है, कौन बन सकता है ग्रेट लीडर। सिंपली क्या था कि जो ग्रेट लीडर है वो कौन बन सकते हैं, वो इंट्रिंसिक होती है। मतलब ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर क्या बताया गया कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो आपकी इंट्रिंसिक होती हैं, दैट लीडर्स आर बोर्न, ग्रेट लीडर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। कि आप किसी एजुकेशन से या आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप इन सब चीजों से, ये जो थ्योरी ग्रेट मैन थ्योरी है ये क्या बताती है कि आप किसी एजुकेशन से या किसी एक्सपीरियंस से आप लीडर नहीं बनते हो, आप तो इनबोर्न होते हो। लाइक कि किसी की फैमिली में अगर लीडर्स हैं तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी क्या होंगी, लीडर्स होंगी। तो क्या है, उन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या हो गया, स्टडी की गई ऑफ द इन्फ्लुएंशियल हीरो। वो देखा गया कि अच्छा इसका पास्ट ये था तो अभी इसका क्या होगा, इसका प्रेजेंट भी ऐसा ही रहता आ रहा है कि इसकी फैमिली में इसी तरीके के लोग हैं, लीडर्स हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर किसी दूसरे सेक्टर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी वैसी ही होंगी। तो ग्रेट मैन थ्योरी में क्या बोला गया, दैट ग्रेट लीडर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। नाउ टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी कब आई, 1930 से 1940s में आई। तो ट्रेड थ्योरी, आपने ट्रेड वर्ड सुना होगा, पर्सनालिटी ट्रेड। ट्रेड किस में आता है, पर्सनालिटी ट्रेड, पर्सनालिटी से रिलेट करता है। सो द ट्रेड लीडरशिप थ्योरी बिलीव्स दैट पीपल आर ईदर born or made with certain qualities that will make them excel in leadership role. So that is certain qualities such as intelligence, sense of responsibilities, creativity, and other values put anyone in the shoes of a good leader. In fact, Golden Elport, he was an American psychologist and he identified almost 18,000 English personality relevant terms. So the trait theory of leadership focused on analyzing mental, physical, social characteristics in order to gain more understanding of what the characteristics or the combination of characteristics that are common among the leaders. तो इस थ्योरी में क्या बात हो रही है, इस थ्योरी में बात हो रही है कि जो ट्रेड थ्योरी है वो क्या बताती है कि जो लीडर्स हैं वो बोर्न भी होते हैं और वो मेड भी होते हैं। इट डिपेंड्स कुछ क्वालिटीज पे, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं इंसान की जो कि उन्हें उनकी लीडरशिप रोल के लिए एक्सेल बनाती हैं। जैसे उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है उनके अंदर, क्रिएटिविटी कैसी है, या फिर कोई भी दूसरी ऐसी ऐसे चीजें जो कि उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, जो कि उन्हें क्या एक टैग देती हैं दैट यस ही कैन बी अ गुड लीडर। जैसे
गोल्डन एल्पर्ट ने कहा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 इंग्लिश पर्सनालिटी रेलिवेंट टर्म्स दी हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी एक जो लीडर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल हाई होना चाहिए, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी टू डूइंग न्यू थिंग्स बाय न्यू एक्सपीरियंसेस और बाय अदर वैल्यूज, पुट anyone in the shoes of a good leader. So जो ट्रेड लीडरशिप थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, वो किसको एनालाइज करती है, आपके मेंटल लेवल को, आपके फिजिकल लेवल को और आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे क्या है, टू गेन more understanding of what the characteristics or the combination of characteristics that are common among the leaders. Now, come over the third point, that is behavioral theory. Behavioral theory कब आई? It comes in between 1940s to 1950s. इसमें क्या बोला गया? In reaction of the trade leadership theory, the behavioral theory are offering a new perspective, one that focus on the behavior of the leaders as opposed to their mental, physical, and social characteristics. So the behavior theory first divided leaders into two categories: those who were concerned with the task and those concerned with the people. Throughout the literature, these are referred to as in different names, but in the essence are identical. देखिए, जो बिहेवियरल थ्योरी है, ये किसको आगे बढ़ाया गया है? ये ट्रेड थ्योरी को ही आगे बढ़ाया गया बिहेवियरल थ्योरी में। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी ने क्या कहा? बिहेवियरल थ्योरी के अंदर लीडर, किसी भी इंसान की, किसी भी लीडर के बिहेवियर के ऊपर काम किया गया, रादर देन ऑन हिज मेंटल, फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जोर देने से ज्यादा किसी भी लीडर के उसके बिहेवियर को मेजर किया गया। इसमें इस थ्योरी में क्या किया गया, एक लीडर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक वो लीडर जो टास्क में कंसर्न है और दूसरे वो लीडर जो पीपल कंसर्न है, मतलब अपने सबोर्डिनेट्स को कंसर्न कर रहे हैं। तो ये क्या है, उसमें बिहेवियरल थ्योरी में क्या किया गया, लीडर के बिहेवियर को फोकस किया गया, और ट्रेड थ्योरी में किसको फोकस किया गया, द मेंटल, फिजिकल एंड द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लीडर। नाउ कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी कब आई? 1960 में आई। टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंटिंजेंसी लीडरशिप theories are an extension of the trade theory, in the sense of human trait are related to the situations in which the leaders exercise their leadership. So it is generally accepted within the contingency theory that leaders are more likely to express their leadership when they feel that their followers will be responsive. कंटिजेंसी थ्योरी में क्या किया गया, इसमें भी ट्रेड थ्योरी को एक्सपेंड किया गया, उसको एक्सटेंशन दी गई, और इसमें क्या है, लीडर्स की जो लीडर के इसमें क्या ध्यान दिया गया कि लीडर, कोई भी जो लीडर है वो कब अच्छा लीडर बन सकता है, जब उसके जो फॉलोवर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव फॉलोवर्स हैं। क्या है, कंटिजेंसी थ्योरी में किस चीज पे ध्यान दिया गया कि जो लीडर्स हैं उसके जो फॉलोवर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं है। सी, it is generally accepted within the contingency theory that leaders are more likely to express their leadership. कब अपनी leadership ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है कोई leader? जब क्या हो, when they feel their followers will be responsible, उसके जो फॉलोवर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं। अब मान लीजिए आपकी क्लास में कोई लेक्चर डिलीवर करने आ जाता है टीचर, तो वो क्या है, टीचर कौन है, आपका लीडर है। अब आप कौन है, उसके फॉलोवर हैं। अगर आप उसको फीडबैक अच्छा नहीं दे रहे हैं, आप क्लास में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, आप रिस्पॉन्सिव नहीं हो। तो क्या है, लीडरशिप कभी भी कोई जो लीडर है वो एक्सप्रेस से वो कब ज्यादा बेटर कर सकता है, जब जो उसके फॉलोवर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हो, उसको रिस्पॉन्स दे, वेदर दे आर गिविंग हिम पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। अगर नेगेटिव दे रहे हैं तो वो कहाँ लूप होल्स हो रहे हैं, वो उन पे वर्क करना स्टार्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो और अच्छा कैसे कर सके, अपने और सबॉर्डिनेट्स को कैसे मोटिवेट कर सके, उनकी बातों पे, जहाँ उनको किसी भी उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उनको वहाँ किस किस चीजों की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग्स की कब जरूरत है, उनको दूसरे मोटिवेशनल हेल्प्स कब चाहिए, तो ये सब चीजें क्या है, कोई भी लीडर कब कर सकता है, जब उसके जो फॉलोअर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हो। देन ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी कब आई? 1970 में आई।
So transition theories, also known as exchange theories of leadership, and are characterized by a transition made between the leader and the followers. In fact, the theories value a positive and mutually beneficial relationship. For the transaction theory to be effective and as a result have motivational values, the leader must find a mean to align to adequately reward or punish his followers for performing leader assigned tasks. In other words, transactional leaders are most efficient when they develop a mutual reinforcing environment or for which the individual or the organizational goals are synced. So the transactional theories state that humans in journals are seeking to maximize pleasurable experience and to diminish unpleasurable experiences. Thus, we are more likely to associate ourselves with the individual that adds to our strength. ट्रांजेक्शनल थ्योरी में क्या हुआ ये 1970 में आई और इसको क्या है एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है which characterized by the transaction made between the leader and the follower and the theory value a positive and a mutual benefits to the relationship of the leader and the follower. इसमें क्या किया गया जो लीडर्स हैं वो किसी भी कोई भी जो असाइन टास्क है उसको परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको रिवॉर्ड भी करते हैं उनके अच्छे काम के लिए और अगर उनका काम कोई भी असाइन टास्क है अगर वो टाइमली पूरा नहीं होता है या ठीक तरीके से पूरा नहीं होता है तो क्या करते हैं अपने जो एक लीडर है उसको क्या करना चाहिए उनको पनिश भी करना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी करना चाहिए मोटिवेट कैसे चाहे वो उनको रिवॉर्ड दे करके करें या फिर किसी दूसरे तरीके से उनको रिवॉर्ड करें वेल मॉनेटरी टर्म्स में करें पोस्ट उनकी हाई कर दें या एनीवे उनको रिवॉर्ड करें उनका या फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं उस काम को लेकर के और अगर वो असाइन टास्क पूरा नहीं हो रहा है तो एक लीडर को क्या करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को पनिश भी करना चाहिए सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर असाइन टास्क on a particular given time in future. So this comes under transactional leadership theory. Now, transformational leadership theory. It came in 1970s. So, the transformational leadership theory states that this process is by which a person interacts with others and is able to create a solid relationship that result a high percentage of trust and that will later result in an increase of motivation, both intrinsic and extrinsic motivation for both leader and the followers. So the essence of transformational theory is that leader transforms their followers through the inspirational nature or the charismatic personalities. Rules and regulations are flexible, guided by the group norms, and these attributes provide a sense of belongings for the followers as they can easily identify it with the leaders and its purposes. See, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी में क्या किया गया इसमें क्या बोला गया कि जो रिलेशनशिप है किसी भी आपके लीडर का है फॉलोवर्स का है उनमें क्या है एक हाई परसेंटेज ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए हाई परसेंटेज ऑफ ट्रस्ट होगा अगर उनके काम में तो क्या वो होगा धीरे धीरे क्या होगा वो रिजल्ट किसकी तरफ रिजल्ट होगा इंक्रीज ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन कैसा हो सकता है चाहे वो इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है मोटिवेशन किसी भी तरीके का होता है अब समटाइम्स क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में क्या बोला गया कि जो आपके जो लीडर्स होते हैं वो आपको अगर मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम तो मोटिवेट करेंगे तो आपका जो ट्रस्ट होगा वो इंक्रीज होगा आप जो काम करेंगे वो ज्यादा जो फॉलोअर्स होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और अपने लीडर्स को अपने लीडर की जो जिस तरह की भी उसकी पर्सनालिटी है उसका जो नेचर है उसको फॉलो करते हैं अब समटाइम्स क्या होता है लीडर्स क्या होते हैं काफी आजकल क्या है रूल्स रेगुलेशंस जो भी वो बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द views or the ideas they are ready to listen the views and the ideas of their subordinates also and they guided the group according to the norms तो क्या है वो सब चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं between the follower and the leader तो उससे क्या होगा उनकी जो बिलोंगिंग्स होते हैं उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या है बहुत ही अच्छे मेंटेन्ड रहते हैं these attributes provide a sense of belongings for the followers as they can easily identify with the leaders and its purpose. Thank you so much.